جی شکریہ. اس میں کسی ممبر نے اس کو اپوز نہیں کیا. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 15. Amendment to the Rules of Procedure Conduct of Business in the National Assembly. Sayyid Naveed Qamar Saab to move item number 15, seeking leave under sub-rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2017. Ji. Naveed Saab. Sir, I seek leave under Rule 4 of Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 122 of Rules of Procedure, that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, in Rule 122, the expression other than a finance bill appearing in the second line shall be omitted, and thereafter the following proviso shall be inserted. تو قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 بلال اظہر کیانی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر، کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں، کیا ترامیم لائی گئی ہیں؟ اس بل میں دو اہم ترامیم لائی گئی ہیں جن کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے کے ساتھ منظوری دی ہے، اگرچہ اپوزیشن نے شدید احتجاج بھی کیا، اور اپوزیشن کی طرف سے جو دو ترامیم تھی ان کے کثرت رائے سے اس کو مسترد کیا ایوان میں. جو دو ترامیم لائی گئی ہیں وہ ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی شخص 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے الیکشن جیت کر، تو وہ دوبارہ کسی دوسری جماعت کو جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ترمیم جو یہ لائی گئی ہے کہ کوئی بھی جماعت جو کہ قومی اسمبلی میں نشست حاصل نہیں کر سکتی الیکشن میں، یا جس نے الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو، اس جماعت کو مخصوص نشستیں جو ہے وہ نہیں مل سکیں گی. تو یہ دو ترامیم ہیں جن کی قومی اسمبلی نے آج کثرت رائے کے ساتھ منظوری دی ہے، اور اب یہ بل جو ہے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ میں جائے گا. سینٹ میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آج سینٹ بھی اس بل کو اپروو کر لے گی. تو آج جب یہ ترامیم پیش کی گئی تھی تو اس پر علی محمد خان جو کہ پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہیں انہوں نے، اور صبغت اللہ نے بھی اپنی ترامیم پیش کی اور اس بل کی مخالفت کی، اور اس پر بل واضح کیا کہ یہ بل عدلیہ پر سپریم کورٹ کا بالخصوص جو فیصلہ ہے مخصوص نشست کے حوالے سے اس پر عمل درآمد روکنے کی حکومت کی کوشش ہے، اور حکومت پارلیمان کو اس کے لیے استعمال کر لی ہے. علی محمد خان نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سپریم کورٹ اور عدلیہ پر یہ حکومت کی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارک کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئین اور قانون کے بالکل مطابق ہے یہ ترمیم، اور اس میں خلاف آئین کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ مزید جو ہے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس قانون کی تشریح کر دی جائے جو کہ سپریم کورٹ کا اس وقت فیصلہ سامنے آیا ہے. تو قومی اسمبلی نے کثرت رائے کے ساتھ اس ترمیم کی دونوں ترامیم کی منظوری دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان تھے ایوان میں، اپوزیشن ارکان، انہوں نے اس ترامیم کے دوران اور اس قانون سازی کے دوران شدید احتجاج بھی کیا، نعرے بازی بھی کی، اور اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا. ٹھیک ہے اظہر، ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں بل رکن اسمبلی بلال اظہر کیانی نے پیش کیا، اور بل میں دو واضح ترامیم جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو شخص 3 دن کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. بل کے متن میں یہ کہا گیا ہے جو شخص 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا، اور جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں ہے وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عالیہ حمزہ کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا. تمام مقدمات میں ضمانت کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا. جسٹس علی باقر نقشوی نے عالیہ حمزہ کے شوہر حمزہ جاوید ملک کی درخواست پر سماعت کی. نیوز رائٹ ناؤ اس ٹاپک پہ ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ اسد امور صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. کمرہ عدالت میں وہ پہنچے تھے تو وہاں پر پتہ چلا کہ عدالت میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وکلاء نے ریسکیو 1122 کو فوری طور پر طلب کر لیا. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. عابد خان بتائیے گا اس سے متعلق.
जी बिल्कुल जी, आज 9 मई के मुकदमात के हवाले से असद उमर और उमर अय्यूब समेत दीगर जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो आज अदालत में पूरी जमानतों के लिए पेश हुए। अदालत में चूंकि रश थी, आज ज्यादा तादाद में बुकला और साहिलीन मौजूद थे, जिसकी वजह से अचानक असद उमर की तबीयत खराब हुई। पहले तो उनके बुकला ने फौरी तौर पर 1122 को कॉल की, बाद वो अचानक नींद बेहोश हो गए। इसकी वजह से बुकला पुलिस के अमले ने जो है और दीगर लोगों ने उन्हें उठाकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़ी जो उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी तक पहुंचाया और उनको फौरी तौर पर PIC मुंतकिल कर दिया गया ताकि उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। चूंकि असद उमर पहले ही कुछ दिल के आर्जे में मुब्तला है, इसलिए जो है उनको फौरी तौर पर PIC भिजवा दिया गया। अच्छा, तो फिर PIC का वैसे यहाँ से फासला कितना है और इब्तदाई तौर पर वहां से क्या पता चल सका है? जी PIC तो बिल्कुल करीब ही है, मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव है। अब चूंकि अभी तो वो पहुंचे हैं, अब डॉक्टर जो उनके चेकअप वगैरह करने और देख रहे हैं ये क्या आया, अचानक उनकी तबीयत क्यों खराब होगी। चूंकि लगता तो ये है कि उन्हें शायद कोई दिल की तकलीफ हुई है, शदीद हफ्स भी है, रश भी था अदालत के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और फिर उनको उठाकर मजबूरन चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जहां समाअत होती है और जो पूरा अहाता है, उसे वुकला ने और पुलिस एहलकारों ने उठाकर असद उमर को दौड़ाते हुए जो है वो अदालत से बाहर लाए और बाहर लाकर उन्हें PIC भिजवा दिए गए ताकि उनको वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। जी ठीक है, थैंक यू। चलें जी, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। असद उमर साहब को तबीयत उनकी नासाज हुई है और हार्ट प्रॉब्लम बताया जाता है कि वो है, पहले भी इस आर्जे में मुब्तला हैं। तो फिल वक्त ये है कि 5 मिनट की ड्राइव पे असल में ऐसे वाक़यात में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि कितनी जल्दी किसी को कहाँ पहुँचाया जाता है, हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वैसे जो है वो इस हवाले से डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी है, तो विल होप कि अल्लाह ताला करे कि वो सेहतियाब हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। एक तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी कंट्रोल को करना होगा। खबर आपको दें, कराची में पुलिस ने लोडिंग गाड़ियों से लूट मार करने वाले गिरोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर हैवी जनरेटर बरामद कर लिया। बात करेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए नजीर इस मुतालिक। बिल्कुल, देखें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस है जिसने टेक्निकल बुनियादों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लोडिंग गाड़ियों से लूट मार करने वाले ग्रुप का अहम कारिंदा गिरफ्तार कर लिया है। इस वाले से SSP कोरंगी तोहीर रहमान का कहना है कि मुलजिम की निशानदही पर शाह रतीफ की हदूद से एक हैवी जनरेटर बरामद हुआ है जो 30 kVA का जनरेटर था, जिसकी कीमत लाख रुपए बताई जा रही है। और मुलजमान ने 27 जुलाई को कोरंगी की हदूद में वारदात करते हुए सुजुकी ड्राइवर को असले के तौर पर रोका था और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया था, जबकि सुजुकी दीगर मुलजमान चलाकर ले गए थे और ने हैवी क्रेन की मदद से वो जनरेटर उतार कर एक गोदाम में रख दिया था। और पुलिस का ये कहना है कि इसमें 4 मुलजमान थे, जिसमें 3 मुलजमान मफरूर है जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चंद रोज के अंदर ही टेक्निकल बुनियादों पर इस केस को हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसका जो जनरेटर था वो बरामद किया गया और मजीद कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया आपका नजीर शाह। बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रही हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में फरीकैन पर जोर देते हैं तशद्दुद से गुरेज करें और तहम्मुल से काम लें। बांग्लादेश में बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में अम्बात की रिपोर्ट्स पर अफसरदा हैं। बांग्लादेश में अपने प्यारों को खोने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. Too many lives have been lost over the course of the past several weeks, and we urge calm and restraint in the days ahead. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Finally, we are deeply saddened about the reports of human rights abuses, casualties, and injuries over the weekend and past weeks. We share our deepest condolences with those who lost loved ones and those who are suffering. We are focused now on supporting an end to the violence and for accountability. All decisions regarding the interim government should be made with respect to democratic principles, rule of law, and the will of the Bangladeshi people.
violence over the past few weeks and the deaths that have occurred, it is vital that we have full and transparent investigations to ensure accountability for these deaths. We focus on the Bangladeshi people's democratic aspirations and see a path to democratic governance. The United States has provided, I'm going to try to do the number from memory here, I think it's around $2 billion to assist with refugees in Bangladesh. And I don't have any immediate comment on how this change of government might affect those programs. I would certainly hope that it wouldn't. मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। बानी पीटीआई कहते हैं मेरी तनकीद चंद अफराद के खिलाफ रही है, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के सवालों के जवाब में बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक करने के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए उनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं। जो असल ताकतें हैं उन्हीं से बातचीत होगी। मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। बानी पीटीआई कहते हैं मेरी तनकीद चंद अफराद के खिलाफ रही है, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के सवालों के जवाब में बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक करने के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए उनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं। जो असल ताकतें हैं उन्हीं से बातचीत होगी। और अब कुछ बात मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह हल्की बारिश के बाद बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा है। और कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की, ये बताएंगे आसिफ खान। बिल्कुल, कराची में आज भी बारिश मुतवक्का है, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह से शहर का मौसम खुशगवार है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, दिन भर मतला इसी तरह अबरालूद रहेगा। उसके अलावा सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जो वक्फे से महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जारी रहने का इम्कान है। दिन में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्का है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हवा चल रही है वो 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर की बेशतर सड़कें जो हैं वो इंतहाई टूट का शिकार हैं। कई सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, कई सड़कों से जो पानी है उनकी निकासी भी मुमकिन नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा नहीं कर सकते तो बांग्लादेश में जो हुआ वही उनका मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो भारत ने एयरलिफ्ट कर लिया, शहबाज और जरदारी के लिए हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच सका तो क्या होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब, कहा आवाम बाहर निकल आए तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। खानदानी इंटरप्राइजेस ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, जब आवाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुसेंगे तो किसी को भागने नहीं देंगे। रावलपिंडी में लियाकत पार्क पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। जमात इस्लामी के धरने का आज 12वां रोज है। धरने के शुरका को इस वक्त नाश्ता दिया जा रहा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम ओवैस। महंगी बिजली, टैक्सीज और दीगर मुतालबात को लेकर जमात इस्लामी का धरना लियाकत बाग मरी रोड के मकाम पर इस वक्त जारी है। सुबह सवेरे का ये वक्त है और यहाँ पे शुरका धरना को जो है वो नाश्ता करवाया जा रहा है। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। 28 और 31 जुलाई को 2 मुज़ाकराती अमल होने के बाद अब तक जो मुज़ाकराती अमल है वो डेडलॉक का शिकार है और उसके बाद कोई तीसरा मरहला नहीं हो सका मुज़ाकरात का। जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत ने कल ये ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने उनके मामलात को संजीदा न लिया तो वो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च कर सकते हैं।